So good morning everyone. So actually already we have covered some micro operations in our previous classes. Okay, so today today we'll discuss some arithmetic micro operations. Okay, there means addition, subtraction, multiplication, division, increment, decrement, some kind of this sort of operations. Okay, so देखो यहाँ पे कुछ arithmetic micro operations लिखा हुआ है symbolic representation. Now you people know that what is the meaning of R1 plus R2. Okay, and this arrow indicating the value whatever here the right side that we move to the register R3, that we know. So that means the contents of the register R1 and the content of the register R2, okay, will be addition in nature, and then that value will move to the register R3. So that is the meaning of that. R1 minus R2 means R1 minus R2, and that will transfer to the register R3. Okay. Similarly, R2 bar means whatever the content inside the R2, that will be once complemented. Before sending it, it should be once complemented, and then that will again will move to the register R2. Means जो पहले था वो ओवरराइट हो जाएगा, है ना, जो पहले था वो ओवरराइट हो जाएगा. सो यहाँ पे देखो R2 बार प्लस 1 है, सो दैट मीन्स R2 बार मीन्स वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1. इसका मतलब क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट. यू पीपल नो दैट वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 is nothing but the two's complement. Okay, and we mostly use it whenever we go for some sort of subtraction process. So R2 bar plus 1 is a 2's complement, okay, of R2. So that means it's a negate. R2 bar plus 1, okay, that is again loaded into R2. So पहले जो था वो ओवरराइट हो जाएगा. यहाँ पे देखो R1 प्लस R2 बार प्लस 1 मीन्स R2 में जो कंटेंट है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, दैट इज टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया. उसके साथ द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर R1 will be added. Yes, yes सर आपका आवाज सही से नहीं आ रहा. ओके. हेलो, कुछ इम्प्रूव हुआ है, बेटर Yes, हुआ sir. है, थोड़ी सी हो गया ना. तो सर यहाँ पे नेटवर्क देखो, की वजह से कट रहा है. हाँ बोलो, नेटवर्क की सर वजह से नेटवर्क हो की वजह से सकता है. आपका वॉइस हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक. सर यहाँ पे आपका देखो, आवाज सर एकदम क्लियर आ रहा है सर. ओके ओके, ठीक है. बोथ साइड में जब नेटवर्क इशू नहीं रहेगा ना, तब वो बेटर अच्छा से सुनाई देगा. इधर ठीक होगा लेकिन सर तुम्हारे तभी पास सर तभी नहीं आ रहा था सर. सर ओके तभी ओके, नहीं आ ठीक रहा है, था, अभी आ रहा है. ओके ओके ओके, नो इशू. So R2 bar plus 1, that means it's a 2's complement. Okay, so it's a 2's complement plus R1.
सो R1 प्लस 2's complement of R2 यहाँ पे, and that is now moving to the register R3. So in that way R1 plus R means क्या है, देखो R1 plus R, R1 plus 1 means increment, one increment, isn't it? So C में तुम लोग लिखे थे ना प्लस प्लस 1 और C प्लस प्लस, ओके, और D प्लस प्लस मीन्स क्या होता है, वो इंक्रीमेंट होता है, और R1 माइनस 1 मतलब क्या है, डिक्रीमेंट होता है। DCR INR दोनों यूज किए थे माइक्रो प्रोसेसर में, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। तो दीज आर बेसिक एरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस जहाँ पे एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ओके, बेसिक सब्ट्रैक्शन एंड द एडिशन ही यहाँ पे है, टूज कॉम्प्लीमेंट बोलो और प्लस 1 माइनस 1 बोलो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ओके। सो दीज आर बेसिक एरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस। ना देखो यहाँ पे we have taken 4-bit binary adder, okay, 4-bit binary adder. You people know that full adder can be implemented by means of a exclusive OR gate, okay. So using exclusive OR gate, if you use single exclusive OR gate, that will give you a half adder circuit. For full adder circuit design, you need to have 2 exclusive OR gate, okay. So यहाँ पे full adder, because we are going for addition, so full adder, full adder, full adder, full adder. So this is carry 0, carry 1, carry 2, carry 3. यहाँ पे इनिशियली A0 B0 मान लो लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट है, तो उसके पहले कोई बीट नहीं है, so in that case we don't have any carry, don't have any having any chances of carry, so in that case C0 should be 0, okay. So initially C0 should be 0 if we don't have any other significant column before A0 and B0. So in that case C0 should be 0, okay. यहाँ पे A0 B0 एडिशन हुआ है, sum is S0, carry may be C1. If both are 1 1, so that may be sum should be 0 and carry should be 1. If any one is 0 and 1, so in that case you people know that sum should be 1 and carry should be 0. So according, by keeping in mind the full adder truth table, starting from 0 0 0 to 1 1 1, okay, this circuit basically follows that full adder's truth table. Similarly A1 B1 sum होगा S1, carry C2 होगा, A2 B2 का sum S2 होगा, carry C3 होगा, यहाँ पे भी A3 B3 का sum S3 होगा and C4 होगा। ये simple circuit, you people know that the basic full adder circuit, okay, and here we are using 4-bit A0 A1 A2 A3 or B0 B1 B2 B3, so that's why it is 4-bit binary adder, okay. Now binary adder subtractor, okay, now we are dealing with binary adder subtractor. देखो यहाँ पे A means control line, okay, that means ये एडर भी हो सकता है, सबट्रैक्टर भी हो सकता है। मान लो in the case 1, that is m is equal to 0, okay, m is equal to 0. Now before starting this adder subtractor operation, you have to go back to the working principle of exclusive OR gate, okay. So I am coming over there, stopping share it, moving to the whiteboard, and I have told you when I discussed all the basic gates before starting this class. So suppose we are having exclusive OR gate, and I have discussed earlier, if it is grounded and if we are having A here, so definitely output में क्या मिलेगा बोलो, बोलो, exclusive OR gate, we are having exclusive OR gate, okay, and one input grounded है, तो अदर इनपुट क्या होगा, ए होगा, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 आउटपुट में, हाँ, ये देखो ये आउटपुट y है,
मैंने डिस्कस किए थे। ओके, दिस बेसिक चीज तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। सर 1 सर। क्यों 1? ये ए दिया है, इनपुट में ए है, बोलो इनपुट में ए है एंड सपोज बी ग्राउंडेड है, एनी वन यू कैन ग्राउंड, नॉट नेसेसरली बी को ही ग्राउंड करना है। सो एनी वन इनपुट इज ग्राउंडेड। ओके, तो y इज इक्वल टू a होगा सर। y इक्वल टू ए होगा, वेरी गुड आंसर, ये हो गया। सो दैट मीन्स इनपुट में जो है वो आउटपुट में चला जाएगा विदाउट एनी चेंज। ओके, जस्ट इट प्रोपागेटिंग द इनपुट टू द आउटपुट विदाउट डिले, विदाउट एनी चेंज। ओके, नाउ सपोज सेम एक्सक्लूसिव और गेट है मेरे पास। ओके, अगेन दिस इज y, this is positive volt VCC, that is maybe 5 volt, okay, or logic 1, and this input is A, so output में क्या मिलेगा? आउटपुट में क्या मिलेगा? सर a प्लस 5। ना, सर VCC ग्राउंड। that means the VCC 5 volt means it's a logic 1, isn't? Logic 1 में means always high, it is always high. If it is B, so B is getting always high voltage, that is 5 volt or logic 1. डिजिटल आईसी है, सोचो। You have to think about the truth table. Already I have discussed it. You follow my previous videos. It should be anyone. If the input is A, what should the output? Output should be, तुम लोग भूल गए हो। अगर सर बोलो। सर a ए बार प्लस होगा, b होना चाहिए। ए बार होगा, कंप्लीमेंट होगा। नाउ दिस गेट कैन बी यूज्ड एज नॉट गेट, ऑलरेडी आई डिस्कस्ड। Before starting my this computer architecture classes, I have discussed basic gates, okay, universal gates, flip-flop, multiplexer, demultiplexer, everything. So whenever I discuss about gate, you follow those videos, you will get the answer. Okay, how it is a bar I have discussed it. Still, if you get doubt, difficulties, I can explain tomorrow class. Okay, so if it is logic one gate, exclusive OR gate में one input is high, so other input would be complemented. That means you remember in one word, exclusive OR gate में any one input, if it is connected to high volt logic 1, then it is behaves as simply not gate. So m input में a होगा तो output में a बार हो जाएगा, ठीक है? This is the case. So now move to the ओरिजिनल केस। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो m इजिकल टू जब 0 हो जाएगा, देखो m इजिकल टू जब 0 हो जाएगा क्या होगा? C0 ऑलवेज 0 बिकॉज A0 B0 ऑल आर स्टार्टिंग बिट, C0 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 0 मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया, 0 मिल गया, 0 मिल गया। So all these exclusive OR gate just like it behaves like, okay, transparent gate, isn't it? Like a transparent gate. That means whatever at the input will go to the input to the full adder circuit. So means क्या होगा? When m is equal to 0, listen carefully, my dear student, listen carefully. I am telling repeatedly. If m is equal to 0, what happens? इस full adder का 2 input होता है, at least 2 input होता है, 3 input होता है, carry, but यहाँ पे 0 है, तो C0 is equal to 0, A0 आ गया यहाँ पे, और इधर से क्या आएगा? B0. So A0 plus B0 sum S0. कैरी होगा तो इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? A1 B1 और कैरी C1, उसका सम होगा S1, और कैरी रहेगा तो इधर जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? A2 B2 प्लस C2 सम S2 कैरी C3, यहाँ पे क्या होगा? A3
कैरी इधर से आ गया C3 and B3, getting S3. The carry is C4. So as I mentioned you earlier, exclusive OR gate में if any one input having zero logic zero input, so ये क्या होगा, इनपुट में जो रहेगा वो आउटपुट में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, B0 है, आउटपुट में B0 चला जाएगा, B1 यहाँ पे B2 यहाँ पे B3. So simple addition. So it's a kind of 4-bit adder circuit. When m is equal to 0, it behaves like 4-bit adder circuit, which was discussed earlier. ऊपर में जो था, पहले वाला जो सर्किट था. Now the interesting will happen if m is equal to 1. m is equal to 1. So that means subtraction होगा. Subtraction का मतलब क्या है? a है, b है, a minus b तुमको बनाना है ना? Again, it's a simple digital electronic circuit class. Okay, don't worry about that. तो उस टाइम क्या होगा, तुमको मालूम है सब लोगों को, मान लो a माइनस b तुमको बनाना है, तो क्या होता है ये, यू कैन राइट डाउन इक्विवेलेंटली, क्या तुम लिख सकते हो, a प्लस b बार plus 1, we can write that, which is nothing to equivalent to a minus b. Yes or no? If you remember the digital electronics class, b bar means 1's complement plus 1. So 1's complement plus 1 means 2's complement. Okay. So इसका 2's complement हो गया, means इसे negate हो गया, a minus b represent करेगा. So ये basically equivalent to a, ये पूरा जो है a minus b हो गया. Okay. So b bar plus 1 means minus. So क्या हो गया बाबू, तुम सबट्रैक्ट कर रहे हो but in the form of addition. सबट्रैक्ट कर रहे हो but in the form of addition. So वो जो पहला वाला एडर सर्किट था वो सबट्रैक्ट भी करेगा if we add b bar plus 1 with a. Okay, b bar plus 1 with a. So means a0 के साथ क्या होगा, a0 plus b0 plus b0 bar plus 1, some kind of that. Okay, so this is the case. So क्या तुमको बनाना है, a के a minus b तब होगा, b का पहले 1's कॉम्प्लीमेंट ले लो आंख बंद करके, उसके साथ क्या करोगे तुम, प्लस 1 करोगे. मीन्स मान लो तुम्हारे पास 1 0 0 0 है b, तो b बार करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 1 1. मैंने क्या बोला, प्लस 1. सो यहाँ पे प्लस 1 करना है, ये जो रिजल्ट आ जाएगा वो माइनस बी हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स a प्लस बी करने से तुमको हो जाएगा. सो मैंने क्या बोला, पहले b है, b बार ले लो, b बार लेने के बाद प्लस 1 कर दो, तो ठीक है, वो b बार प्लस 1 हो गया, उसके a के साथ ऐड कर दो, तो ये a माइनस बी हो जाएगा. दैट इज द कंडीशन. सो यू रिमेंबर दिस केस, दिस पोर्शन. ओके, a माइनस बी इज नथिंग बट a प्लस b बार प्लस 1. तो देखो हम लोग ये कर रहे हैं कि नहीं, देखो a तो इधर एक नो चेंज, a0 a1 a2 a3. ओके, सो देन a हो गया. उसके बाद देखो ये फुल एडर है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आएगा उसका एडिशन ही होगा, लेकिन यहाँ पे आने से पहले तुमको क्या करना है, b बार प्लस 1 करना है, b बार प्लस 1 करना है. तो b बार कैसे होगा, देखो m इज इक्वल टू 1 कर दिया, m इज इक्वल टू 1 मीन्स C0 में 1 आ गया, तो LSB में 1 आ गया. देखो यहाँ पे क्या था, सोचो, LSB में देखो, मान लो A तुम्हारा क्या है, 1 1 1 1, और B तुम्हारा है मान लो 0 0 0
1 है, तो तुमको बी बार करना है, तो क्या हो जाएगा बी बार 1 1 1 0। देन फिर क्या करना है, बी बार प्लस 1 बनाना है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा एलएसबी में, देखो ये B0 है, B1 B2 B3, ये B3 0 था, B2 0 था, B1 0 था, B0 1 था। उसके बाद हम लोग इसका बार कर दिया है ना, तो क्या कर दिया एलएसबी में B0 में 1 कर दिया, देखो B0 में 1 ऐड कर दिया, तो वही हम लोग किए हैं, देखो तो देखो ध्यान से देखो, ये देखो A0 है, B0 के साथ B0 बार आ गया यहाँ पे, बिकॉज M इक्वल टू 1 हो गया, तो ये एक्सक्लूसिव और गेट नॉट गेट यूज होगा, सो B बार आ गया, उसके साथ प्लस 1 हो गया, तो क्या होगा A0 प्लस B0 प्लस 1 मीन्स 1 कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा उसके साथ प्लस 1 हो गया, मीन्स 2 कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है? तो ये भी B बार हो गया, B1 बार, B2 बार एंड B3 बार, समझ गया ना? तो ये A माइनस बी दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन हो गया। सो व्हेन M इक्वल टू 1 होगा, तो अब तुम्हारा जो B है, B का 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 दैट इज 2 कॉम्प्लीमेंट हो गया, एंड उसके साथ A के साथ B का ऐड हो गया, सो A प्लस B बेसिकली इज गिविंग यू A माइनस बी, सो A प्लस B बार प्लस 1, जैसे मैंने बोला यहाँ पे हो रहा है A प्लस B बार प्लस 1 इज इक्विवेलेंट टू A माइनस बी। बोलो कुछ डाउट है तो बोलो। तो B का तुम क्या कर रहे हो, B का तुम 2's कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, ओके? B का 2's कॉम्प्लीमेंट, मान लो तुम्हारे पास A0 A1 A2 A3 तुम बिल्कुल कुछ नहीं दिए हो, जीरो, नो वैल्यू इज देयर, तो सोचो 2's कॉम्प्लीमेंट B का हो रहा है कि नहीं? देखो M इक्वल टू 1 दो, ये B0 बार आ गया, B1 बार आ गया, B2 बार आ गया, B3 बार आ गया, और A0 A1 A2 A3 तो मैंने कुछ नहीं दिया है। उसके बाद देखो M इक्वल टू 1 आ गया, तो B0 बार प्लस 1 हो गया, तो B0 बार प्लस 1 हो गया मीन्स क्या हो गया, एलएसबी में प्लस 1 ऐड हो गया, मीन्स पहले 1 कॉम्प्लीमेंट हुआ था, उसके बाद प्लस 1 हो गया, सो B का 2 कॉम्प्लीमेंट। नाउ तुम क्या करोगे, A0 A1 A2 A3 को भेज दो and make a addition, so that will give you the subtraction. So that's why it is called, this figure is called 4-bit adder and subtractor. So by using this simple circuit, you can add 2-bit to binary number, you can subtract to binary number. As you are having 4-bit, so you are having 4 full adder circuit. If you are increasing number of bits, so you have to add accordingly the full adder circuit. If you want to add 8 bits, so you need to have 8 full adder circuits, okay? Or if you want to subtract 8-bit number, so in that case also you have to use 8 full adder circuit. सो ना बोलो तुम्हारा कुछ डाउट है तो बोलो, कैसे ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कैसे ये एडिशन हो रहा है, तो कुछ डाउट है तो तुम बोलो, बट दिस सर्किट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जो मैंने बोला वो तुम दिमाग में रखो, B बार प्लस 1 करो पहले, B बार प्लस 1, then you add with A, that will give you A minus B. This is the formula, this is the formula. So if you have any doubt, you can ask me the question. Now binary increment, बोलो क्विक, बोलो क्विक, टाइम मेरे पास नहीं है, कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम इंक्रीमेंट सर्किट में चले जाएंगे। तो इंक्रीमेंट तुमको मालूम है, ठीक है? मान लो तुम्हारे पास A इज देयर, A प्लस 1
और बी डेटा इज देयर, तो बी प्लस एन करना है। तो देखो ये हाफ एडर है A0, ठीक है। A0 इज देयर, ठीक है। तो एज यू आर हैविंग सिंगल नंबर ओनली A, सो दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग हाफ एडर सर्किट। फुल एडर का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि A0, A1, A2, A3 चार फुल एडर ले लिया। तो पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट कर रहे हो ना, +1, तो इसलिए देखो 1 घुसा दिया यहाँ पे, तो A0 +1 हो गया। शाम है, इधर कैरी हो गया, आ गया इधर, वो कैरी होगा तो इधर आ जाएगा। देखो इंक्रीमेंट का फिजिकल तुमको समझना है, देन यू कैन डिजाइन द सर्किट। ये सर्किट तुमको डिजाइन करना है। देखो हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हैं, उसका एडवांस सब्जेक्ट है। तो मान लो तुम्हारे पास ए है, इतना टाइम देने से नहीं होगा, क्विक तुमको समझना है चाहिए। 1 मान लो 0 है, ये 1 है, ये तुम्हारा क्या है, A0 है, ये तुम्हारा A3 है। ओके, तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, इसके साथ 1 जोड़ना है। तो ये लो सिग्निफिकेंट बिट, इसके साथ 1 जोड़ना है, तो ये एडिशन हो रहा है ये 2 बिट में, तो ये एक हाफ एडर लगेगा। देखो ये 110 हो गया, तो कैरी आ गया ना इधर, कैरी 1, तो 2 बिट है, तो ये भी एक हाफ एडर में काम आ जाएगा। 1 दी 1, ये 1 आ गया, तो देखो इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट 1 हो गया। तुमको मालूम है 1101 होगा तो उसके बाद नेक्स्ट बिट क्या होगा, 1110 ही होगा। तो ये इंक्रीमेंट, ए का इंक्रीमेंट हो गया। तो मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक हाफ एडर, यहाँ पे एक हाफ एडर, यहाँ पे भी एक हाफ एडर, यहाँ पे भी एक हाफ एडर, तो 4 हाफ एडर लग रहा है। कहाँ भी फुल एडर का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ए एक सिंगल डेटा है, ए है, उसके पास ए जोड़ना है। सिमिलरली डिक्रीमेंट के भी A-1 करना है, ठीक है। बोलो कुछ डाउट है तो बोलो। यहाँ पे देखो A0, A1, A2, A3 बस इतना ही नंबर है, उसके साथ LSB में तुम LSB में क्या ऐड कर रहे हो, +1, ये फिक्स्ड है इंक्रीमेंट के लिए। तो दो, तुमको मालूम है हाफ एडर में 2 इनपुट लगेगा रहता है, यहाँ पे भी 2 इनपुट लगता है, तो हाफ एडर में काम चलता है। फुल एडर का कोई, फुल एडर लोगे तो भी काम होगा, लेकिन फुल एडर का कोई जरूरत नहीं। फुल एडर में 3 इनपुट होता है, लेकिन इंक्रीमेंट में 2 इनपुट काफी है, तो इसलिए हम लोग हाफ एडर ले रहे हैं, LSB में +1 कर रहे हैं। सो 110 हो गया, वो जो कैरी था यहाँ पे आ गया, वो 0 प्लस, ठीक है, देन 0 + 1 1 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1 1 1 0 हो गया। सो दिस इज द केस इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, वो सर्किट हाफ एडर से काम चलता है, ठीक है। इसलिए हम लोग दिखाया है यहाँ पे, जे हाफ एडर है, हाफ एडर है, हाफ एडर है, तो A0, A1, A2, A3, और पहला वाला जो है A0 के साथ 1 ऐड हो रहा है, तो ये इंक्रीमेंट है, ठीक है। ना एरिथमेटिक सर्किट, देखो यहाँ पे क्या है, D is equal to A plus Y plus C in दिया हुआ है, A plus Y plus C in, ठीक है। C in का मतलब है कैरी इन हो रहा है, A का मतलब है A0, A1, A2, A3 में भी इज देयर, ओके, एंड Y इज देयर, सो A plus Y plus C in हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, A plus Y plus C in। तो देखो, तो फुल एडर लगेगा, फुल एडर, फुल एडर, फुल एडर, फुल, कितना फुल एडर लगेगा, जितना तुम्हारा बीट नंबर होगा। यहाँ पे 4 बीट है, आउटपुट में D0, D1, D2, D3, इसलिए 4। तो मान लो D4, D5, D6, D7, ओके, तो 8 बीट कर रहे हो तो और 4 फुल एडर लगेगा, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर यूजिंग हियर 4 बीट, ठीक है। तो 4 बीट हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो A0, तो
फुल एडर के इनपुट में क्या क्या है, देखो देखो यहाँ पे क्या है, ए है, वाई है और सी इन है। सी इन तो फिक्स है, सी इन में भी आइदर 0 और 1 कैरी इन है। वाई है तो वाई मीन्स हम लोग 4 बीट के लिए काम कर रहे हैं, तो y0, y1, y2, y3 होगा। सिमिलर काइंडली a0, a1, a2, a3 होगा। तो सिमिलरली d0, d1, d2, d3 होगा। d0 के लिए क्या होगा ना, d0 के लिए होगा a0 प्लस y0 प्लस सी इन जो है फिक्स है, ठीक है। d0 के लिए क्या होगा a0 प्लस y0 प्लस सी। तो पहले d0 के लिए सोचो, 3 तो ऐड है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, देखो मल्टीप्लेक्सर भी हम लोग यूज किया, मीन्स मल्टीपल ऑपरेशंस वी कैन डू हियर, दैट्स व्हाई वी कैन यूज मल्टीप्लेक्सर। अदरवाइज सिंपली एडिशन हो जाता है, फुल एडर से काम चलता है, लेकिन ये सोच कुछ अलग है। यूजिंग दिस सर्किट वी कैन परफॉर्म सो मेनी एरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने सारे मल्टीप्लेक्सर लिए हैं, 4 मल्टीप्लेक्सर लिए हैं, 4 फुल एडर के लिए, ठीक है। और इंडिविजुअल जो मल्टीप्लेक्सर है वो 4x1 में काम चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर जो है, इसलिए यहाँ पे 2 सिलेक्ट इनपुट लगेगा, A0 एंड S1। तो इनिशियली तुम A0 S1 जब 0 0 करोगे तो क्या होगा, देखो A0 एंड S1 बोथ आर 0 0, तो ये 0 सिलेक्ट होगा, करेक्ट। यहाँ पे भी 0 सिलेक्ट होगा, यहाँ पे भी 0 सिलेक्ट होगा, यहाँ पे भी 0 सिलेक्ट होगा, 0 लाइन सिलेक्ट होगा। तो 0 सिलेक्ट होने से यहाँ से क्या सिलेक्ट होगा बाबू, B0 सिलेक्ट होगा। यहाँ से क्या सिलेक्ट होगा, B1 सिलेक्ट होगा। यहाँ, हाँ यहाँ पे क्या सिलेक्ट होगा ना, B2 सिलेक्ट होगा। यहाँ पे क्या सिलेक्ट होगा ना, B3 सिलेक्ट होगा। तो Y0 में क्या मिलेगा यहाँ पे बाबू, B0 मिलेगा, B1 मिलेगा, B2 मिलेगा, B3 मिलेगा, ठीक है। मान लो C in इक्वल टू 0 है, C in 0 1 जो भी है, हम लोग का कोई टेंशन का काम नहीं, क्योंकि सिंपली वो ऐड होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो C in मान लो 0 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A0 आ गया, यहाँ पे B0 आ गया, तो D0 में क्या मिल जाएगा बाबू, फुल एडर है, तो A0 प्लस B0 दैट इज D0, A0 प्लस B0 दैट इज G0, A1 प्लस B1 दैट इज D1, A2 प्लस B2 दैट इज D2, A3 प्लस B3 दैट इज D3। तो क्या हो गया, देखो ट्रुथ टेबल में S0 S1 बोथ आर 0 0 एंड C in also 0, इनपुट में B0 B1 B2 B3 है, तो आउटपुट में क्या हो गया, D0 इज इक्वल टू A0 B0, D1 इज इक्वल टू A1 B1, D2 इज इक्वल टू A2 B2, D3 इज इक्वल टू A3 B3। सो इन जनरल D इज इक्वल टू A प्लस B। सो क्या हो गया, सिंपल एडिशन हो गया, एडिशन, ओके। C in 0, so add without carry, add addition without carry, getting my point? Among 30 people are here including me, if you have any doubt you can tell me how this circuit gives you D is equal to A plus B when you are considering A0 S1 and C in both are 0, so all threes are 0, not both, all threes are 0। so C in 0 है, इसलिए एडिशन हो गया, A प्लस B C in equal to 0, so that's why A plus B हो गया। so सिंपल एडिशन हो गया है विदाउट कैरी। नाउ सोचो A0 S1 स्टिल 0 है, लेकिन C in 1 है, C in 1 है, कैरी है, तो क्या हो जाएगा, D0 इज इक्वल टू A0 B0 प्लस C0, ओके। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैरी होगा तो क्या होगा, D1 इज इक्वल टू A1 B1 प्लस C1, A2 B2 प्लस C2, A3 B3 प्लस C3। तो क्या हो गया, देखो ये यहाँ पे भी
ए बी का एडिशन हो रहा है, लेकिन विथ कैरी हो रहा है, विथ कैरी हो रहा है। क्यों क्यों विथ कैरी? क्योंकि सी इन इक्वल टू 1 दे दिया। इनिशियली वी आर हैविंग कैरी, तो सी इन इक्वल टू 1 है, इसलिए सम हो रहा है डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। वाई प्लस 1? ना कैरी इन सी इन इक्वल टू 1 मैंने बोल दिया, इसलिए 1 ए प्लस बी प्लस 1 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस 1 हो गया, सो एड विथ कैरी, एड विथ कैरी हो गया। ओके, सो दैट्स इट इज कॉल्ड एड विथ कैरी बिकॉज सी इज इक्वल टू 1। नाउ नाउ देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, 0 1 दो, 0 1 देखो क्या दिया है, S1 को दिया है, मान लो ये दिखाओ, सबट्रैक्ट में दिखा रहा हूं 0 1 1, तो S1 0, S1 0 और S0 1 हो गया। तो 0 1 मतलब क्या है, ये लाइन सिलेक्ट होगा, एवरी मल्टीप्लेक्सर का 1 पिन सिलेक्टेड होगा। तो ये 1 मीन्स यहाँ पे क्या, B0 बार, यहाँ पे 1 मीन्स B1 बार, यहाँ पे B2 बार, यहाँ पे B3 बार। बिकॉज हम लोग सिलेक्ट इनपुट में 0 1 दिए हैं, तो ये 1 इनपुट सिलेक्टेड होगा, ये भी 1 सिलेक्टेड होगा, यहाँ पे भी 1 सिलेक्टेड होगा। तो क्या मिला तुमको, B0 बार, B1 बार, B2 बार एंड C2 बार, सॉरी B3 बार, B0, B1, B2 एंड B3 इसका बार मिल गया। कहां पे ना, Y0 इज इक्वल टू B0 बार, Y1 इज इक्वल टू B1 बार, Y2 इज इक्वल टू B2 बार, Y3 इज इक्वल टू B3 बार। इसका बार हो गया, मीन्स क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ B हो गया। तो टूज कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो क्या करोगे तुम, C इज इक्वल टू 1 ले लो, LSB में 1 ले लो, सो C इज इक्वल टू 1 कर दिया। तो क्या हो गया, B0 बार, B1 बार, B2 बार, B3 बार, ये था। तो B0 बार के साथ प्लस 1 हो गया, मीन्स क्या हो गया, B का क्या हो गया, B बार प्लस 1 हो गया, मीन्स B का टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। सो B का टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसके साथ A का एडिशन हो रहा है, A0, A1 एंड A2, A3 इसका एडिशन हो रहा है। सो A0 प्लस B0 बार प्लस 1, यहाँ पे क्या हो गया, A1 प्लस B1 बार प्लस 1, सम काइंड ऑफ दैट। सो मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे सबट्रैक्शन हो गया, सबट्रैक्ट, जैसे मैंने प्रीवियसली वो जो 4 बिट सबट्रैक्टर था उसी से ये आ गया। इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, जब 0 1 होगा, कैरी इन में 1 होगा, तो B का क्या हो गया, B बार हो गया, यहाँ पे Y में B बार हो गया, और D इक्वल टू क्या होगा, A प्लस B बार प्लस 1। देखो सब Y में क्या मिल गया, B बार मिल गया, B बार मिल गया है ना, और C0 में 1 मिल गया, तो B बार प्लस 1 हो गया। तो B बार प्लस 1 मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये तो है ही कनेक्शन, तो फुल एडर है, तो A के साथ B का टूज कॉम्प्लीमेंट का एडिशन हो गया, A के साथ B का जो टूज कॉम्प्लीमेंट है उसका एडिशन हो गया। और पहले मैंने क्या बताया था, A के साथ जब B का टूज कॉम्प्लीमेंट का एडिशन होगा तो वो क्या कहेगा, A माइनस B कहेगा। सो क्या हो गया, ये सबट्रैक्शन हो गया, सबट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है सबट्रैक्ट, करेक्ट। So this is the case. So up to this today we'll discuss up to this. So from tomorrow we'll continue. Okay. तो ये घर में पढ़ाई करो, आज हम ये नोट तुमको दे दिया, ये पूरा का पूरा नोट